Dear students, Assalamu alaikum. Topic for the today's lecture is project time management. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. Last time we discussed project scope management and the different key processes of project scope management were collecting requirements, defining scope, creating the WBS, verifying scope and controlling scope. And then we discussed one by one these all key processes. In collecting requirements, we discussed about different methods to gather requirements, and we also shared the viewpoint that collecting requirement is not an easy task. It takes a lot of time and effort, and the effort should be relevant or proportional to the project size. If the project size is small, then definitely requirements gathering may be a short activity, like conducting 2-3 interviews with 2-3 key users. And if the project is huge, then the collection of requirements may involve different methods and lengthy duration, and the documents that are produced, that are developed or prepared during the requirements elicitation and the requirements gathering process may contain a single page or multi-volume documents. So it totally depends on the project size and the nature of the project. And then we discuss defining the scope. What does scope mean? We have a look on the scope, like it is a work need to be done, and we have to define it very clearly. And the initial document is the project charter, and then we from the project charter carry forward the other documents and prepare the different documents to define the scope. And we definitely estimate for different resources for the different activities or the work to be done. और फिर इसकी एलाबोरेशन होती रहती है. नेक्स्ट जैसे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम इज़ आल्सो अ की रिसोर्स. सो हाउ टू असाइन or how to estimate the time we will discuss today. And then we also discussed about creating the WBS, work breakdown structures, and we discussed the different approaches for the WBS, like top-down approach, bottom-up approach, mind mapping approach. And in top-down approach, we said that it is for conventional projects, and if the project is quite unique in nature, totally different, then we have to have a bottom-up approach. Mind mapping is like a brainstorming technique, and first we try to identify different activities, other tasks, and then we may adopt a top-to-down or bottom-up approach to further define and elaborate. And we also discuss different formats. We may use the hierarchical approach, or we can use a tabular format to develop the WBS. And we also discussed about the WBS dictionary, and we also discussed about the verifying scopes, and it is about the formal acceptance of artifacts or the deliverables by the customer. So if we clearly define the scope, then in fact we can assess the progress. Either we are following the project scope statement, we are on the track, or we are facing the scope creep. And what was the scope creep? That when the project scope is like carrying on to bigger in size,
and we cannot stop it, so it is called the scope creep. And then we also discussed about controlling the scope, and we definitely need good change control system to control the scope. And today's lecture is about time management. Now we start with the importance of time management, and definitely on-time delivery of the project or the successful completion on the time is the challenging task. And schedule problems are quite common in different projects, doesn't matter it's a IT project or non-IT project. And what is the reason that we have schedule related problems very common? Because time is the entity that can be easily measured by anyone, so we have no confusion about the time. So time, everyone understands the time dimension, and if we say that this specific activity will take 2 days, so no one has any confusion about 2 days, although we have to have clear understanding of the effort, that how much effort we need to do that activity in 2 days. And we will discuss this topic, I mean time and the effort in detail in the coming slides. Anyways, we can easily compare the estimated and the actual time. We estimate for the some task, and when we perform that task, then we see how much the time we spend, that is the actual time. So it is quite easy to compare the planned time or estimated time and actual time. And we say that time is least flexible. What does it mean? It means that whenever we decide for the schedule, for the time to do some project or some activity, definitely we are always have a kind of fixed deadlines. There is quite less chance of having very flexible schedule. So time is having least flexibility, and doesn't matter we carry on our work or not, ultimately time will continue. Time always goes on and no one can stop the time. Time management is also quite important, but there are different factors that affect the time management and our behavior about the time and the schedule. Different individual work styles also take a different perspective of the time management. Some people are quite energetic, quite punctual, whereas some people are quite lazy. Cultural differences are quite important. Some people in some country have a different attitude regarding time, whereas some other countries have different kind of time management skills and attitudes to do the task on time. So it totally depends on individual to individual or culture to culture, and definitely organizations' work ethics also may vary. So time is time management is quite tricky, and that's why we have the project time management practices, the good practices that if we follow, we can have a better time management. Now we discuss the key processes of the time management. The first key process is defining activities. The second one is sequencing activities. The third one is estimating activity resources. And fourth one is activity durations, to estimate the activity durations. The fifth one is developing the schedule. And the final is controlling the schedule. Now we discuss one by one these different processes. The first key process is defining activities. What does it mean? We have to define the activities or the tasks with the time duration. What are the starting dates of the activities? What are the end dates or the finish dates?
And although we define work breakdown structures and we have work activities there, are the tasks, are the work units there, and we also associate different resources whenever we define or develop the WBS, but still we need to have some clear idea or a good estimate of the time estimates. We must have the good idea of the time duration, what the time we need to do some specific activity. So for that purpose we have to have start and end dates of the specific activities. So main input to define activities is definitely scope statement and the WBS, and when we do this process the key output is activity list. और एक्टिविटी लिस्ट में क्या होता है, इसके अंदर वी लिस्ट द एक्टिविटीज़ विद देयर टाइटल, सम आइडेंटिफायर जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरी एक्टिविटीज़ से, और डेफिनेटली वी हैव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज़, और वी आल्सो हैव एट्रीब्यूट ऑफ दैट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. और एट्रीब्यूट्स में क्या कुछ आता है कि क्या कुछ प्रीडिसेसर्स होंगे ऑफ एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, क्या सक्सेसर्स होंगे, व्हाट वुड बी द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़, और इसको भी आगे हम डिटेल में देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. और डेफिनेटली वी हैव टू आइडेंटिफाई द लीड्स एंड द लैग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, और डिफरेंट सोर्स जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें हाईलाइट करनी होती हैं. एंड ऑब्वियसली इफ़ देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स वी हैव टू मेंशन दोज कॉन्स्टेंट्स. अगर कोई इम्पोज डेट्स हैं वो बतानी होती हैं, और कोई और related assumptions हैं about those activities, we have to mention those assumptions as well. When we define activities को categorize कर सकते हैं या activities को बेहतर तौर पे monitoring करने के लिए हम उसको milestones में डिवाइड कर सकते हैं या माइलस्टोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. माइलस्टोन आपने पहले भी ये टर्म सुनी होगी कि माइलस्टोन्स क्या होते हैं. व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी एंड यू फाइंड मैनी माइलस्टोन्स ऑन द वे. और पहले कभी अगर आपने ट्रैवल किया हो देहातों में तो वहाँ पे ये पत्थरों के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर जो है वो लिखा होता था, एंड दैट वाज एक्चुअली द माइलस्टोन जो आपको बताता है कि कितना कुछ आपने ट्रैवल कर लिया और कितना स्टिल आपने ट्रैवल करना है. तो इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ के हवाले से माइलस्टोन्स डिफाइन करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको देख सकते हैं. And we have to define reasonable number of milestones depending on the project size. और milestone को ऐसे भी define किया जाता है कि it is a significant event and normally it has no duration. आमतौर पर इसकी कोई duration नहीं होती, लेकिन आप किसी task को जो कि कोई उसकी specific timeline हो, कोई specific time उसको required हो to perform that activity, हम उसको भी, उस टास्क को भी या उस एक्टिविटी को भी माइलस्टोन जो है कंसीडर कर सकते हैं. और डेफिनेटली जो है हमें ये हेल्प आउट करता है टू आइडेंटिफाई द मेन एक्टिविटीज़, टू कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. और अल्टीमेटली हमारा इसका गोल क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वट एवर गोल्स आर द स्केड्यूल गोल्स आर डिफाइंड, हम उनको मीट कर लें. और ज़रूरी नहीं है कि हर माइलस्टोन जो है वो कोई डिलीवरेबल होगा. इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरली डिलीवरेबल्स. और इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि सपोज अगर मैं ये कहूँ कि हमने किक ऑफ मीटिंग एक अरेंज करनी है, दैट कैन बी अ माइलस्टोन टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट. और ज़रूरी नहीं है कि इस मीटिंग के
एंड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो, ये जस्ट एक इनिशियल मीटिंग हो और इसको स्टिल हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक हमारा माइलस्टोन है, क्योंकि हमने एक मीटिंग अरेंज कर ली और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक इनिशियल डिस्कशन कर ली, और इसको हम माइलस्टोन कह सकते हैं। नेक्स्ट की process of the time management is sequencing activities. Quite simple, इसके लिटरल मीनिंग के साथ इसको अंडरस्टैंड करें कि हमने ये देखना है कि क्या सीक्वेंस होगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जब हम एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं, जब उसके लिए हम ड्यूरेशन एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें we have to define, we have to identify the different dependencies between the different tasks or activities. और डेफिनेटली सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमें वो रीजंस को भी देखना है कि डिपेंडेंसी क्यों है, क्या हम उसको ख़त्म कर सकते हैं डिपेंडेंसी को, या वो ऐसी डिपेंडेंसी है कि जिसको हमें डेफिनेटली लेके चलना है साथ। तो वी हैव टू एवेलुएट द रीजंस फॉर द डिपेंडेंसी। और फिर डिपेंडेंसीज को 3 डिफरेंट तरह से डिवाइड किया जा सकता है या क्लासिफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज मैंडेटरी डिपेंडेंसीज। मैंडेटरी डिपेंडेंसीज को जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते, we have to continue with those dependencies. इसी तरह से discretionary dependencies होती हैं या soft logic होती हैं और इनको somehow change किया जा सकता है। and the third one is external dependencies, जो कि कुछ ऐसी dependencies होती हैं जो आपके outside the project आपके activities के साथ उनका relationship होता है, और ज़रूरी नहीं है आपके प्रोजेक्ट के अंदर से भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि इसको एक्सटर्नल ही कहा गया है तो आम तौर पे जो है आउटसाइड द प्रोजेक्ट जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके साथ रिलेटेड होती हैं, और वो बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती कि जिनका प्रोजेक्ट के साथ कोई कंसर्न ना हो। इसलिए मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि सपोज करते हैं कि आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हार्डवेयर की जो सप्लाई है दैट इज़ like external dependency in your project for some other activities. तो although के project से related है लेकिन still outside dependency है या external dependency है। और इसकी main input जो है to sequence the activities to find out the relationship or different type of dependencies, एक्टिविटी लिस्ट होती है, स्कोप स्टेटमेंट होती है एंड द माइलस्टोन लिस्ट। ये सारी हमारी की इनपुट्स हैं। इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी हमें असिस्ट करते हैं। दोज आर आल्सो द इनपुट्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट स्केड्यूल टूल्स that assist us, help us to estimate the schedules, to estimate the duration for different activities. और उसके अंदर हम बात करते हैं नेटवर्क डायग्राम्स की, जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम्स, आर समटाइम्स इट इज कॉल्ड PERT चार्ट्स। और इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर कि क्या कुछ डिफरेंट पॉपुलर जो है हमारे पास इस तरह के टूल्स हैं, नेटवर्किंग एनालिसिस डायग्राम्स। और ये क्या करते हैं, हमें इस तरह की जो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द टास्क्स और या एक्टिविटीज़, और उसका जो भी सीक्वेंस है हम उसको देख सकते हैं। और इसके अंदर एक क्वाइट कॉमन एग्जांपल इज एरो डायग्रामिंग मेथड, इसको ADM भी कहते हैं या एक्टिविटी ऑन एरो अप्रोच भी, AOA अप्रोच भी कहते हैं इसे। और एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, और इसको भी PDM भी कहा जाता है। तो हम इनको आगे डिटेल में देखते हैं कि इसके क्या प्लस माइनस हैं। एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम, ये एक एग्जांपल देखें आप अपनी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट नोड्स हैं जो कि सर्कल में रिप्रेजेंट किए गए हैं,
और फिर ये डिफरेंट नोड्स जो हैं ये थ्रू एरोस जो है कनेक्टेड हैं और इनके ऊपर जो है दो तरह की फिगर्स मेंशन हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं और डिजिट्स हैं। और ये क्या है, ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट की गई हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन। और जो इसके आगे टाइम दिया गया है इक्वल टू साइन के साथ, दैट इज़ दैट टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। और वो आप देख सकते हैं कि एक जो नोड 1 है दैट इज़ द स्टार्टिंग नोड, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और पैरेलल में 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ए बी एंड सी, और हर एक्टिविटी की अपनी एक ड्यूरेशन है। नोड 8 जो है ये एंड नोड है, फाइनल नोड है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है डिफरेंट, इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंट पाथ्स हैं जो कि एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगी, लाइक फ्रॉम 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6 and 8, और 1 to 3, 3 to 6 and 6 to 8। हम इसको बाद में मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या यूजेज हो सकता है इस डायग्राम का। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे AOA डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिस्ट डाउन करना है एक्टिविटीज़ को जो कि जिसके लिए हमने AOA डायग्राम बनानी है, और फिर हमने ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने नोड 1 पे स्टार्ट करना है। द इनिशियल आर द वेरी फर्स्ट एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म इन दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमने फिनिश नोड्स बनाने हैं, वी हैव टू ड्रा दोस नोड्स, और फिर हमें उनको कनेक्ट करना है थ्रू एरोज और उनको लेबल करना है विद एक्टिविटी नेम एंड ड्यूरेशन, एंड देन वी हैव टू लुक फॉर द बर्स्ट एंड मर्ज। अब बर्स्ट और मर्ज क्या है, अगर हम दोबारा पीछे स्लाइड पे जाएं, यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर जो नोड 1 है इससे एक से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखें इनिशिएट हो रही हैं, तो ये काइंड ऑफ बर्स्ट है जहाँ पे ऐसा नोड जहाँ पे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो ऑनवर्ड जा रही हैं। और अगर हम सपोज नोड नंबर 5 को देखें जहाँ पे डी और ई जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, तो ये जो है मर्ज नोड कहलाएगा। इसी तरह से नंबर 6 भी मर्ज नोड है, और भी डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, कितने कुछ नोड्स हैं, और उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से नोड्स जो हैं वो बर्स्ट हैं और कौन से मर्ज नोड्स हैं। अब हम फिर दोबारा अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं, और एक और की पॉइंट ये है, जब आप इस तरह की डायग्राम को ड्रा करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड शुड कंटिन्यू टूवर्ड्स राइट, और सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते जाना है अनटिल के हम अब हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएं और हम एक फाइनल एक नोट पे पहुँचें। और इट इज़ गुड टू हैव नो एरो जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो ऑन द डायग्राम, ठीक है, ऐसे एरोज को अवॉइड करना चाहिए। वी हैव टू ड्रा द पिक्चर द डायग्राम इन द वे दैट देयर इज़ नो क्रॉसिंग बिटवीन द arrows. Okay, now we talk about task dependencies and we elaborate it further कि हमने पहले बात की कि टास्क डिपेंडेंसीज 3 तरह से हैं, मैंडेटरी हैं और डिस्क्रिशनरी हैं और एक्सटर्नल हैं, लेकिन यहाँ पे उसको फर्दर उसकी टाइप्स बताई जा रही हैं कि वो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं टास्क डिपेंडेंसीज की। मेनली इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। उसके अंदर आप देखें, फर्स्ट वन इज फिनिश टू स्टार्ट, और फिनिश टू स्टार्ट मीन्स के जो टास्क बी है दैट कैन नॉट बी स्टार्ट, और इन अदर वर्ड्स दैट टू एक्टिविटी जिस तरफ हम जा रहे हैं दैट एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टार्ट अनटिल टास्क ए फिनिशेस। तो ये क्वाइट कॉमन जो है एक डिपेंडेंसी की टाइप है। आमतौर पे हमारी अक्सर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं कि एक एक्टिविटी जो है वो फिनिश होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है, एक नॉर्मल सीक्वेंस जो होता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने का। द सेकेंड वन इज स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड इट इज़ अबाउट टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अनटिल टास्क ए स्टार्ट्स।
और ये किसको डिफाइन ये किसको बता रहा है, ये इस तरह का रिलेशनशिप कि जिसमें हमें पैरेलल टास्क स्टार्ट करने होते हैं। जब पैरेलल टास्क स्टार्ट होते हैं तो उनकी टाइप जो होती है वो स्टार्ट टू स्टार्ट होती है, जिसमें फ्रॉम एक्टिविटी भी और टू एक्टिविटी भी दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं। अब थर्ड वन इज फिनिश टू फिनिश डिपेंडेंसी। और फिनिश टू फिनिश में क्या होता है कि टास्क बी कैन नॉट फिनिश अनटिल टास्क ए फिनिशेस। और इसका मतलब क्या है कि टू एक्टिविटी जो है दैट कैन नॉट बी फिनिश्ड अनटिल के आप टास्क ए या फ्रॉम एक्टिविटी को फिनिश नहीं करेंगे। कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो इनिशिएशन है दोनों एक्टिविटीज़ की वो एक साथ हो, लेकिन जो वो फिनिश होंगी वो जब कंक्लूड करेंगे उन एक्टिविटीज़ को, जब वाइंड अप करेंगे तो वो एक साथ दोनों ख़त्म होंगी। इसी तरह से द फोर्थ वन इज स्टार्ट टू फिनिश। और ये थोड़ा सा रेयर रिलेशनशिप है बिटवीन एक्टिविटीज़ और थोड़ा सा टिकी है। इसके अंदर देखें कि टास्क बी कैन नॉट फिनिश अनटिल टास्क ए स्टार्ट्स। टू एक्टिविटी को जो है उस वक्त तक हम ये फॉर्मली फिनिश नहीं कर सकते अनटिल अनलेस की जो फ्रॉम एक्टिविटी है वो स्टार्ट ना हो जाए। ओके, हियर इज द एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। और इसके अंदर देखें कि बॉक्सेस बनाए गए हैं एंड इन दैट बॉक्सेस activities are mentioned as A, B, C and D, and we also have start and finish dates with activity IDs and the total duration required to perform that activity. और उसके लिए जो resources required हैं वो भी बताए गए हैं। और ये जो है ये फिगर IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर 6 से पेज 221 से ली गई है। इस डायग्राम के अंदर जो आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिनके आउटर बॉर्डर बोर्ड्स हैं जिन बॉक्सेस के, इसको हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली हमें क्रिटिकल पाथ को बता रहे हैं और ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टूल को यूज़ करें तो उसके अंदर आप इस तरह से प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। In this slide, we compare activity and arrow and precedence diagramming method. और precedence diagramming method सबसे पहला जो डिफरेंस है, ये पहला जो प्लस पॉइंट है PDM का, वो ये है कि it is more frequently used as compared to activity and arrow method. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब हम एक्टिविटी एंड एरो मेथड को फॉलो करते हैं और डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें कुछ डमी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड करानी होती हैं जिनकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती और हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुलफिल दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम कि जो हमें उस डायग्राम को बनाने के लिए चाहिए होता है कुछ इस तरह का कुछ एक्टिविटी या टास्क, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। पीडीएम में ऐसा कुछ नहीं होता, डमी एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें नहीं होती। ये डमी एक्टिविटीज़ समटाइम्स रिलेशनशिप को शो करने के लिए चाहिए होती हैं जो कि एओ में ड्रा करते हैं, लेकिन पीडीएम में ऐसा कुछ नहीं होता। और इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद डैश्ड एरो लाइन्स और ज़ीरो ड्यूरेशन के साथ। जो भी ज़ीरो ड्यूरेशन के साथ एक्टिविटी होगी एरो डायग्रामिंग मेथड में वो डमी एक्टिविटी होगी। पीडीएम जो है वो डिफरेंट हमें डिपेंडेंसीज शो कराता है, जबकि एक्टिविटी एंड एरो जो डायग्रामिंग मेथड है उसके अंदर एक ही तरह का रिलेशनशिप शो होता है जिसको हम फिनिश टू स्टार्ट कहते हैं कि एक एक्टिविटी फिनिश होगी तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है एक्टिविटी एंड एरो मेथड की। द नेक्स्ट की प्रोसेस इज एस्टिमेटिंग एक्टिविटी रिसोर्सेज कि हमें क्या कुछ रिसोर्सेज चाहिए किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और उसके लिए डेफिनेटली हमें अगेन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एज ए इनपुट चाहिए होते हैं। और जो प्रीवियस हमारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर होते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। और अगर हमने वेल डिफाइंड एस्टिमेट्स हैं हमारे या हमने रियलिस्टिक एस्टिमेट्स किए हैं अदर रिसोर्सेज के लिए तो डेफिनेटली जो है वो अच्छा होगा बाद में हमें अपना जब हम ड्यूरेशन को एस्टिमेट करेंगे। डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं अदर देन टाइम वो अगर
वेल डिफाइंड होंगे तो बाद में जब हमने ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना है तो वो एस्टिमेट ज़्यादा अच्छा होगा। और अगेन जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना कल्चर या जो अपना सेटअप है वो भी अफेक्ट करता है आपकी रिसोर्स एस्टिमेशन को। और इसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स हैं, ऑब्वियसली एक्सपर्ट जजमेंट, जो कि बहुत सारे केसेस के अंदर हमने इसको देखा कि डिफरेंट जो की प्रोसेसेस हैं ऑफ डिफरेंट नॉलेज एरियाज, एक्सपर्ट जजमेंट इज वन ऑफ द मेन टूल। इट मीन्स कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसको डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और वो अंडरस्टैंड करता हो इन सारे की एक्टिविटीज़ को और प्रोसेसेस को, तो ये बहुत बेहतर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और प्रोजेक्ट के लिए। और एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स, व्हाट डज इट मीन, वो जो हमने पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात की थी कि डिफरेंट हमारे पास जो अल्टरनेट्स हैं उसको हम देख सकें, एनालाइज कर सकें कि कौन सा रिसोर्स, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। और फिर जो और हमारे पास एस्टिमेटिंग डेटा है पहले से अवेलेबल है उसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली टू एस्टिमेट द एक्टिविटी रिसोर्सेज। और ऑब्वियसली जो ये डिफरेंट प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये मेनली कोई भी डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए की जाती हैं। बहुत कम ऐसे होता है इन करंट कॉन्टेक्स्ट आजकल के दिनों के अंदर के ऑर्गेनाइजेशंस मैनुअली इसको परफॉर्म कर रही हूँ, नहीं, बल्कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात है कि अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को और अगर हमारे टीम मेंबर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने उसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स पहले किए हुए हैं, तो जो हमारा एस्टिमेट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। Okay, before estimating the activity resources, there are some important questions that must be answered. Like the number one, how difficult will it be to do specific activities? We have to have good understanding of the activities, कि activities की nature क्या है, and when we will perform those activities, what kind of problems we may face. तो उसको देखते हुए हमने जो है एस्टिमेट करना होगा रिसोर्सेज को। नेचर ऑफ द एक्टिविटी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट और उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखें, इज देयर एनीथिंग यूनिक इन प्रोजेक्ट स्कोप दैट विल अफेक्ट रिसोर्सेज? अगेन, कि आपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, देन इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू एस्टिमेट द डिफरेंट रिसोर्सेज। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कोई डिफरेंट नेचर का है, वो उससे पहले आपकी उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट का, और उसके अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करना ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट की नेचर को समझना, प्रोजेक्ट के स्कोप को समझना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस हिस्ट्री इन डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज़? क्वाइट पॉसिबल कि जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एक कॉमन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कोई यूनिकनेस एज सच नहीं है जो कि जिसको परफॉर्म करना डिफरेंट हो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया है, तो डेफिनेटली उसको भी एस्टिमेट करना कि क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे उस सिंपलर प्रोजेक्ट के लिए, अगेन ये चैलेंजिंग टास्क होगा। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज? अगेन क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और जिसके लिए आप एस्टिमेट कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज को आप जो है प्लान कर रहे हैं, क्या जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। सपोज आप जावा का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई टूल डेवलप करना है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जावा की एक्सपर्टीज अवेलेबल है, जावा के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर आपको उसके लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा, रिक्रूट करने पड़ेंगे लोग, वो कब होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको सोचना होगी। देन वुड इट मेक सम सेंस टू आउटसोर्स सम ऑफ द वर्क? और ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी प्रोजेक्ट लेंगे आप ऑल द टाइम यू विल डू दैट, नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन फील्स that we can outsource some of the portion, some of the project work, तो उसको एनालाइज करना होगा कि आउटसोर्स करने के अंदर जो है वो क्या एडवांटेज होगा या किस तरह की लिमिटेशंस होंगी,
या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इस चीज़ को देखना भी ज़रूरी है। और आईटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर आउटसोर्सिंग, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉमन प्रैक्टिस है, आजकल बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो आउटसोर्स करती हैं अपने प्रोजेक्ट को। जब हम एस्टिमेट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर एक्टिविटीज़, तो अल्टीमेटली जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, लिस्ट कंटेनिंग द एक्टिविटी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट और रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और साथ इसके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट, वो भी अपडेट होते हैं। और रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक हायरार्की होती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिसोर्सेज है, जिसके अंदर आप क्लासीफाई करते हैं अपने रिसोर्सेज को, उसकी सब टाइप्स बताते हैं और उसकी एक विजुअल प्रेजेंटेशन है। और इसकी एग्जांपल देखें कि आपकी कैटेगरी प्रोग्रामर्स हो सकती है एज ए रिसोर्स, ठीक है, और उसके अंदर जो आपकी सब टाइप्स हो सकती हैं या टाइप्स जिनको कहा जाए, तो वो क्या हो सकता है कि जावा प्रोग्रामर्स, .NET प्रोग्रामर्स, मे बी सम वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स जो कि कोई और किसी टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट हों। और इसके साथ साथ एक और चीज़ देखें ऊपर कि एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेशन जो है वो हमें हेल्प करती है जो बाकी जितने भी हमारे नॉलेज एरियाज़ हैं, जैसे कि आगे हमने ड्यूरेशन एस्टिमेट करना है, उसके अंदर भी हमने कॉस्ट एस्टिमेट करना है, उसके अंदर भी, और भी बाकी जो हमें एचआर की जो मैनेजमेंट और जो एचआर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे होंगी, कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जब हम एस्टिमेट करेंगे, तो डेफिनेटली जो एक्टिविटी लिस्ट है जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज को जो है हाईलाइट किया है कि क्या कुछ रिसोर्सेज चाहिए, ये हमें वहाँ पे हेल्प आउट करेगा। ओके, द नेक्स्ट की प्रोसेस इज एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशंस। एस्टिमेट जब करते हैं हम पहले रिसोर्सेज को, और उन रिसोर्सेज की बेस के ऊपर हम टाइम को एस्टिमेट करते हैं, ड्यूरेशन, क्योंकि टाइम भी एक रिसोर्स है। तो पहले हम बाकी रिसोर्सेज जो है जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर हो सकता है, और डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन को एस्टिमेट करते हैं। और ड्यूरेशन बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअल टाइम वर्कड ऑन एन एक्टिविटी प्लस elapsed टाइम, जो टाइम गुजर गया है और जो एक्चुअल टाइम उस एक्टिविटी के ऊपर हमने स्पेंड किया है, दैट ऑल इज द ड्यूरेशन स्पेंड ऑन दैट एक्टिविटी। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखना होगा कि जो हमने डिफरेंट रिसोर्सेज असाइन किए हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं आपकी ड्यूरेशन एस्टिमेट को। अगर हमने किसी टास्क को जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड से असाइन किए हैं, तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिवली कि आपको ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए होगी उस एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और अगेन जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ड्यूरेशन जो है वो टाइम से रिलेटेड है और एफर्ट जो है वो अदर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। एफर्ट और ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंस है। इसको इस एग्जांपल से समझें कि एक टास्क है एंड दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन 1 डे, बट इट डजंट मीन कि 8 hours ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डू दैट टास्क। क्वाइट पॉसिबल कि आपको एक दिन के अंदर वो टास्क करना है, बट यू नीड 40 hours ऑफ वर्क। तो वो 40 hours ऑफ वर्क और 8 hours ऑफ वर्क जो है वो एफर्ट है, जबकि उसकी जो वैसे ड्यूरेशन है 1 डे, वो एक टाइम डायमेंशन है जो कि जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हमें वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट ड्यूरेशंस एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटी। और इसी तरह से इफ़ वी चेंज द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, अगर हमारा स्कोप चेंज होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अफेक्ट होंगी, वो चेंज होंगी, और ऑब्वियसली उनके लिए डिफरेंट जो हमारी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं प्लस जो हमारी टाइम की रिक्वायरमेंट है, जो ड्यूरेशन का एस्टिमेट है, वो भी अफेक्ट होगा, चेंज होगा। अगेन इट इज़ क्वाइट गुड टू रिव्यू सम सिमिलर प्रोजेक्ट्स। वो आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है, इनपुट मिलता है कि पहले जो इस तरह के टास्क हुए, एक्टिविटीज़ हुई, वो आपको रियल एक एस्टिमेट में हेल्प करेंगे कि अब अगर हम इस टास्क को परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या टाइम चाहिए होगा। और डेफिनेटली अगर एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिल जाए, दैट इज़ आल्सो क्वाइट गुड टू हैव रियलिस्टिक एस्टिमेट फॉर द ड्यूरेशन।
The main inputs to estimate the activity durations are activity list, activity resource requirements and resource calendars. ये भी बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमें ये पता हो कि क्या कुछ रिसोर्सेज चाहिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, प्लस वो जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनकी क्या अपनी इंगेजमेंट है, उनके क्या अपने इंडिविजुअल कैलेंडर्स हैं. किसी आपको कोई प्रोग्रामर चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो ऑलरेडी उस टाइम के ऊपर जो कि किसी आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए उस टाइम के ऊपर वो ऑलरेडी 2 और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है. तो आपको मेक श्योर करना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है. रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं हमने पहले डिस्कस किया कि नॉर्मली लिमिटेड होते हैं एंड वी हैव टू हैव सम सेटलमेंट एंड some kind of trade-off when we are estimating for different areas of the project management like time estimate और जो other resource estimates हैं, कोई और communication जो plan करनी है, meetings plan करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए हमें देखना होगा. ओके, estimate जब करते हैं हम duration को तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि अब तक जो एक्टिविटीज़ हुई हैं रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तो वो एक्चुअल क्या हमारा रहा, एक्चुअल टाइम हमने कितना स्पेंड किया और एस्टिमेट हमने क्या किया था. तो ये हमें हेल्प आउट करेगा कि जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है हमने उसको कैसे लेके चलना है एंड हाउ वी शुड एस्टिमेट फॉर द रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम. तो ये बहुत ज़रूरी है. और फिर अगेन ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को देखना इसको बहुत ही क्रिटिकल है, क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करें कि आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम है उसके ऊपर वो रिसोर्स अवेलेबल हो. और अल्टीमेटली जो आपकी आउटपुट होती है व्हेन यू एस्टिमेट फॉर द एक्टिविटी ड्यूरेशंस तो एक एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स का डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर आपने ये सारा कुछ प्लान किया होता है. और जो आपके एस्टिमेट्स होते हैं फॉर ड्यूरेशन वो डेफिनेटली कंक्रीट नंबर में होते हैं, कंक्रीट फॉर्म में होते हैं लाइक 2 वीक, 2 डेज, 3 मंथ्स. तो ये कंक्रीट नंबर है. अब हम बात करते हैं कि जब हम ड्यूरेशन एस्टिमेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए या पूरे प्रोजेक्ट के लिए तो 3 डिफरेंट तरह के एस्टिमेट्स हो सकते हैं और इनको 3 पॉइंट एस्टिमेट्स भी कहा जाता है. और ये 3 पॉइंट एस्टिमेट्स क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट और पेसिमिस्टिक एस्टिमेट. ऑप्टिमिस्टिक को हम बेस्ट केस सिनेरियो भी कह सकते हैं. हम एक आइडियल सिनेरियो को सोच रहे हैं और उस तरह से एस्टिमेट करते हैं और डेफिनेटली ये जो टाइम होगा, ये जो ड्यूरेशन होगी, ये मिनिमम टाइम होगा जो कि हमें किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगा. और जो मोस्ट लाइकली है इट इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड सिनेरियो और या हम कह सकते हैं कि ये एवरेज केस है और इसके अंदर हमारा जो एस्टिमेट है वो बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है लेकिन हम एवरेज जो है इसको एस्टिमेट कहते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा प्लस माइनस सोचते हुए जो है टाइम को एस्टिमेट करते हैं. जो थर्ड वन है वो पेसिमिस्टिक है या वर्स्ट केस सिनेरियो है और इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को और हम इसके वर्स्ट सिनेरियो को सोच रहे होते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे और कोई अनसीन प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो फिर हम ये इसको इस तरह से एस्टिमेट करते हैं. और ये जब हम आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, जब हम पर्ट एस्टिमेट करते हैं और पर्ट क्या है इसको आगे हम डिस्कस करते हैं तो उस वक्त हमें ये तीनों तरह के एस्टिमेट्स चाहिए होते हैं. और ऑब्वियसली एक्सपर्ट जजमेंट जो है इसके अंदर एक अच्छा टूल है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ही बेसिकली वो एक वे है टू एस्टिमेट द मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस, जो भी आप इसको कह लें. द नेक्स्ट की प्रोसेस इज डेवलपिंग द स्केड्यूल. अब एक्चुअल हम स्केड्यूल की बात करते हैं. अभी तक जो हमने पीछे की प्रोसेस डिस्कस किए उन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं और उसको हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं उन सारे की प्रोसेसेस के वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू डेवलप द स्केड्यूल. वो इसके लिए इनपुट होती है और डेफिनेटली हमें मल्टीपल जो है आइट्रेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनकी प्रोसेसेस की जो हमने पहले डिस्कस की हैं टू हैव सम गुड
प्रोजेक्ट स्केड्यूल एस्टिमेट, और या हम ये कह सकते हैं कि इसको प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को फाइनलाइज करने के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स जो है इसको रिव्यू करना होता है, आइटरेट करना होता है। और डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल हम बना सकें, प्लान कर सकें, और ये हमें हेल्प आउट करता है जब हम बाद में प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को जब हम मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्केड्यूल होता है वही हमें हेल्प आउट करता है कि व्हाट वी प्लान्ड एंड व्हाट वी आर इन रियल, व्हाट वी हैव इन रियल, ठीक है। और ऑब्वियसली जो आउटपुट है मेन इसकी वो प्रोजेक्ट स्केड्यूल ही है, और डिफरेंट जो इसके लिए टूल्स हैं वो हमारे पास गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रिटिकल चैन स्केड्यूलिंग एंड PERT एनालिसिस, और इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम इसको डेवलप करते हैं और क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं गैंट चार्ट से, और गैंट चार्ट आपने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा। अक्सर जब आप कहीं पे अपने स्टडीज़ के दौरान भी कोई एस्टिमेट करते हैं टाइम के हवाले से, कोई अपना टाइम टेबल बताते हैं, कोई स्केड्यूल बताते हैं, तो आप गैंट चार्ट को यूज़ करते हैं। अक्सर इसको बार चार्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है, और ये हमें स्केड्यूल को हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने स्केड्यूल को। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करते हैं, उसके साथ उसके स्टार्ट्स और एंड डेट्स होते हैं। वी आल्सो मेंशन व्हाट आर आवर की एक्टिविटीज़, या हम ये कह सकते हैं कि क्या हमारे माइलस्टोन्स हैं, क्या हमारे समरी टास्क हैं जो कि डिफरेंट सब टास्क को जो है वो कैटर कर रहे होते हैं, और क्या डिफरेंट हमारी डिपेंडेंसीज हैं अमंग द टास्क्स। और एक्टिविटीज़ जो हैं वो वही होती हैं जो कि वर्क यूनिट्स होते हैं WBS के अंदर, जिसको वर्क पैकेज कहा जाता है, और डेफिनेटली इनका एक जैसा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि WBS के अंदर कुछ और वर्क आइटम डिफाइन किए जाएं और जब हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ को उनके लिए एस्टिमेट करें टाइम और रिसोर्सेज को, तो यहाँ पे कोई डिफरेंट लिस्ट हो या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो। डेफिनेटली इनको मैच करना चाहिए WBS की एंट्रीज़ के साथ, और डिफरेंट हम इसके अंदर सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है लर्न करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सिंबल्स हैं। इस स्लाइड के अंदर देखें आप, तो हमारे पास एक गैंट चार्ट है, और ये गैंट चार्ट जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है इस फिगर के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन किया गया है। इसके अंदर कुछ मेन टास्क्स हैं, कुछ सब टास्क्स हैं। अगर आप देखें नंबर 11 के ऊपर, तो जो मेन टास्क है वो एडवर्टाइजिंग है, और उसके अंदर जो है डिफरेंट और सब टास्क दिए गए हैं, जैसे डेवलप क्रिएटिव ब्रीफ्स और डेवलप कॉन्सेप्ट्स और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। तो ये डिफरेंट सब टास्क हैं जो कि उस हेडिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर दिए गए हैं। और अगर आप इसकी राइट साइड वाले पोर्शन को देखें, तो सबसे टॉप के ऊपर डिफरेंट जो है लिस्ट दी गई है एक मंथ्स की, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड सो ऑन, और नीचे देखिए डिफरेंट डेट्स दी गई हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्टिविटीज़ को जो है वो यहाँ पे प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, वीक वाइज या डे वाइज। तो यहाँ पे वीक वाइज जो है इनको प्लान किया गया है, और यहाँ पे इसके नीचे पोर्शन में डेट्स के नीचे देखें अगर, तो हमें डिफरेंट बार्स नज़र आ रही हैं, और इसके अंदर कुछ बिल्कुल ब्लैक हैं, और उसके दोनों साइडों के ऊपर जो है, दोनों एंड्स के ऊपर वो एरोस बने हुए हैं जिनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउन है। तो इनको हम देखें समरी टास्क कह रहे हैं, और उन समरी टास्क के अंदर जो है सब टास्क हैं, और सब टास्क जो है वो जितनी उनकी लेंथ है वो बेसिकली उसकी एस्टिमेटेड या वो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन जो है उसको बता रहे हैं। कि लेट से अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि डेवलप क्रिएटिव ब्रीफ्स, जो कि एडवर्टाइजिंग के अंदर फर्स्ट सब टास्क है नंबर 12 के ऊपर, तो ये कहीं मिड ऑफ जनवरी में स्टार्ट होके एंड ऑफ फरवरी को जा रहा है।
तो ये इसका एस्टिमेटेड टाइम है जो कि रिक्वायर्ड है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपको डायमंड साइन नज़र आ रहे हैं, डायमंड बॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट माइलस्टोन्स को जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और डिफरेंट माइलस्टोन्स देखें, अगर इसी के अंदर जो ये टास्क जो हमारा नंबर 11 के ऊपर जो है, जो समरी टास्क जिसको हम कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग, इसके एंड के ऊपर जब ये ख़त्म हो रहा है इसका क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, तो हमने इसके नीचे जो है वो एक माइलस्टोन साइन दिया हुआ है और इसके साथ डिफरेंट डेट्स भी मेंशन की गई हैं कि कब जो है ये डिफरेंट माइलस्टोन्स हम इसको अचीव करेंगे। तो एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसको देखें कि डिफरेंट जो बार्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं विद एरोस, और ये जो है वो डिपेंडेंसीज को शो कर रही हैं बिटवीन द टास्क। अगर आप देखें ये नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर, तो ये सारे टास्क जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं और इसको इस तरह से शो किया गया है। अगर नीचे आप आए, आप अगर 26 रो नंबर और 27 को देखें, यहाँ पे माइलस्टोन और जो एक स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटी है उसके अंदर भी डिपेंडेंसी को शो किया गया है। तो ये जो फिगर है वो अगेन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक से ली गई है जिसका पेज नंबर 225 है। और ये एक एग्जांपल जो है आपको हाईलाइट कर रही है वो सारे की कॉन्सेप्ट्स जो कि गैंट चार्ट के हवाले से हैं और वो जो डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू डेवलप द गैंट चार्ट। माइलस्टोन्स हमने बात की कि नॉर्मली ये कोई इनकी ड्यूरेशन नहीं होती और हम इसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ या टास्क जो कि प्रोजेक्ट के अंदर टाइम टू टाइम हम देख रहे होते हैं, और किस तरह के माइलस्टोन्स होने चाहिए या कितने कुछ माइलस्टोन्स होने चाहिए किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है। लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं टू डेवलप, टू हाईलाइट, टू आइडेंटिफाई द माइलस्टोन्स के किस तरह के माइलस्टोन्स होने चाहिए, और इसको हम स्मार्ट क्राइटेरिया भी कहते हैं। और S स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर असाइनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम फ्रेम्ड। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। ये बेसिकली कहता है कि माइलस्टोन्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइलस्टोन स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई स्पेसिफिक टास्क जो कि जिसको हम, जैसे हमने पीछे बात की एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग इज समथिंग स्पेसिफिक। ये एक माइलस्टोन है किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर कि आपने उसको एडवर्टाइज करना है। और फिर मेजरेबल, मेजरेबल मीन्स कि जिसको हम मॉनिटर कर सकें, उसको एवेलुएट कर सकें। और लाइक अगर हम ये कहते हैं कि एक जो टास्क है, एक माइलस्टोन जो है एडवर्टाइजिंग, उसके अंदर 3-4 हमारे सब टास्क हैं और उन सब टास्क के अंदर हम उनको एवेलुएट कर सकते हैं कि कितने % हो गया या नहीं हुआ। और फिर असाइनेबल होना चाहिए, जो एक टास्क होगा, जैसे हमने WBS के अंदर बात की थी कि एवरी वर्क यूनिट और वर्क पैकेज मस्ट बी असाइन टू एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी जो टास्क है वो भी किसी को असाइन किया जाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल होगा, वो एक टीम भी हो सकती है, लेकिन अगेन टीम के अंदर कोई टीम लीड होगा या कोई और उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। सिमिलरली रियलिस्टिक होना चाहिए। अनरियलिस्टिक माइलस्टोन्स जो है वो अचीव नहीं होंगे और डेफिनेटली आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो जब भी हम माइलस्टोन्स सेट करें तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज के टाइम फ्रेम्ड होने चाहिए, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए। लेट्स से कोई टास्क जो हमने एक माइलस्टोन सेट किया और वो माइलस्टोन उसके अंदर 5 सब टास्क हैं और सारे वो सब टास्क उनको फर्दर ड्यूरेशन असाइन की गई हैं, लेकिन ये जो माइलस्टोन है ये विद इन 2 मंथ्स टाइम जो है ये हो जाना चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम टास्क है। अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई भी माइलस्टोन नहीं होता। तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया है, इसको हम जहन में रख सकते हैं जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए माइलस्टोन्स जो है वो डिफाइन करें। ओके, इस स्लाइड में अब हम बात करेंगे कि माइलस्टोन्स जो है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकते हैं टू
reduce the risk related to the project schedule. Project schedule हम estimate करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमने प्लान किया है स्केड्यूल को उसी तरह से हम एग्जीक्यूट भी करेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को. तो माइलस्टोन्स हमें हेल्प आउट कर सकते हैं और हम अवॉइड कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं स्केड्यूल रिस्क को. तो उसके अंदर पहली जो की पॉइंट है वो ये है कि हम माइलस्टोन्स को डिफाइन करें इन द अर्ली फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. हम जितना अर्ली उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जितना अर्ली हम उनको डिफाइन करेंगे और उनको इंक्लूड करेंगे गैंट चार्ट में, तो हमारे लिए जो प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है दैट वुड बी क्वाइट ईजी. और इसी तरह से माइलस्टोन्स को जो है हम वी शुड ट्राई टू कीप इट स्मॉलर एंड फ्रीक्वेंट. बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के बाद या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के बाद कोई माइलस्टोन डिफाइन करना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. वी शुड हैव सम स्मॉल माइलस्टोन्स और फ्रीक्वेंट माइलस्टोन होने चाहिए. तो वो ज़्यादा अच्छा हमें इनसाइट देंगे प्रोजेक्ट का. अगर हम हर एक महीने के टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट को अगर एवेलुएट कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हम ऑन द ट्रैक हैं या हम डी ट्रैक हो गए हैं, तो ये इससे बहुत बेहतर है कि हम 3 महीने के बाद अपनी प्रोग्रेस को देख रहे हों कि क्या हम टाइम के ऊपर चल रहे हैं, क्या हम एस्टिमेटेड जो हमारे जो प्लान्स थे उनको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसी तरह से माइलस्टोन्स जो हैं वो आपस में सारे रिलेट करने चाहिए और किसी फिक्स उसके साथ जो है फिक्स जैसे पीछे हमने बात की थी कि रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम फ्रेम होने चाहिए और सारे प्रोजेक्ट को जो है उसके अंदर डिफरेंट माइलस्टोन्स मिलके वो सारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को हमें हाईलाइट करेंगे. एंड अगेन माइलस्टोन जो है वो नेचर उसकी बाइनरी होगी, आइदर इट इज़ कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड. तो इसके अलावा नहीं होगा. माइलस्टोन को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंप्लीट हो गया, फॉर सम अदर रीजंस ये कंप्लीट नहीं हो सका. और इसी तरह से जो है हमें क्रिटिकल पाथ जो है उसको केयरफुली देखना होगा. और क्रिटिकल पाथ क्या होता है इसको हम आगे आने वाले उसके अंदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फिर इसको मैनेज करते हैं या इसको कैसे अपडेट करते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट रिकमेंडेशंस की आईटी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आप उनको कह सकते हैं. और इसके अंदर हमने ये इसको अलहदा से इसलिए हाईलाइट किया है, यहाँ पे अलहदा से इसलिए ये एक स्लाइड दी है कि आमतौर पे जो आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर स्केड्यूल जो एस्टिमेट्स होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आईटी प्रोजेक्ट्स उनमें हम फेल होते हैं टू मीट द एस्टिमेटेड टाइम और द स्केड्यूल. और इसके लिए सबसे की पॉइंट ये है कि हमें कंटिन्यूस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना चाहिए, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, एंड वी शुड रिवाइज द प्लान अकॉर्डिंगली. जितनी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ ही फ्रीक्वेंट अपडेट्स होंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में. और फिर अगेन हमें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है सेट करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा उसको कि बिल्ड ऑन अ सॉलिड लाइन. व्हाट डज इट मीन कि कम से कम जो है उसके अंदर एरर्स हों. अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फुल ऑफ बग्स है या उसको उस तरह से क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस नहीं किया गया तो डेफिनेटली वो बाद में भी, पहले भी डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर भी और डिप्लॉयमेंट जब हो जाएगी तो उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट होगा और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में लेके जाएगा. इसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि वी शुड असाइन राइट टास्क टू द राइट पीपल. जो एक्यूरेट टास्क जो कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा कैपेबल हैं, जिनके पास ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको टास्क असाइन करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू के आप उन लोगों को टास्क असाइन करें जो कि इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं या उन टास्क के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ या रेलिवेंट नहीं है उनसे वो. और डेफिनेटली जो आपके अच्छे डेवलपर्स हैं
उनको ही क्रिटिकल जो टास्क हैं वो असाइन करने चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल और ऑन टाइम होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक और की पॉइंट ये है कि वी शुड स्टार्ट विद द हाई रिस्क टास्क फर्स्ट, जिसके अंदर कुछ यूनिकनेस है या उसके अंदर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें उस तरह के टास्क को पहले कर लेना चाहिए। अगर हम उनको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो मोरल है वो हाई होगा और बाकी टास्क को करना जो है एज कंपेयर टू द हाई रिस्क टास्क वो इजी होगा। लेकिन इट डजेंट मीन कि हम हर टास्क को जो है वो कंसीडर करें या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि है ही हाई रिस्क प्रोजेक्ट। इसीलिए यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एक प्रोवर्ब लिखा है, डोंट बॉयल द ओशियन। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसका कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है या जो यूजलेस हो सकती है आफ्टर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, तो आप कोई ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत थॉरो एनालिसिस करना पड़ेगा और बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि किस टास्क को पहले करना है और किसको असाइन करना है और कैसे होगा। और फाइनल देखें कि इंटीग्रेट अर्ली एंड ऑफन, और ये आजकल की एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसको हम एजाइल मेथोडोलॉजी भी कहते हैं या एजाइल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि जितना फ्रीक्वेंटली जो है आप इंटीग्रेट करते रहेंगे अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को, उनको टेस्ट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो चांसेस एरर के और प्रॉब्लम्स अकर होने के वो कम होंगे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फ्रीक्वेंटली बिल्ड करते रहें अपने डिफरेंट जो भी वर्जन्स हैं, और इसको देखें आइडियल ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर इसको करेंगे और डेली बेसिस पे इंटीग्रेट करेंगे अपने कोड को, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी समराइज टुडेज लेक्चर। हमने बात की डिफरेंट की प्रोसेसेस related to the project time management. First one was defining activities, और हमने कहा कि एक्टिविटीज़ आदो के हम WBS के अंदर भी उनको हाईलाइट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्टिविटीज़ को कोई लेबल असाइन करते हैं, कोई उसके लिए स्पेसिफिक टैग, उसके आइडेंटिफायर, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका डिस्क्रिप्शन, तो ये इस तरह की सारी जो है वो एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन हो जाती हैं और ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें सारे रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम जो है वो एस्टिमेट करना है। और फिर उसके बाद हम सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़, ये दूसरा की प्रोसेस था। इसके अंदर हमने देखा कि जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं एक्टिविटीज़ के बीच में, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको जस्टिफाई करना है, उसके रीजंस को देखना है, और फिर इसमें हमने देखा कि मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी और एक्सटर्नल जो है एक्टिव डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, और फिर हमने एस्टिमेटिंग एक्टिविटी रिसोर्सेज के प्रोसेस को देखा कि हाउ वी एस्टिमेट द रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, और इसके अंदर हमने कहा कि हम रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं, इसके अंदर उसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स या सब टाइप्स हैं उनके बारे में बताते हैं, और और हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिफरेंट उनको अपडेट करते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन के एस्टिमेट की बात की, उसके अंदर हमने ड्यूरेशन वर्सेस एफर्ट की बात की कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द टाइम डायमेंशन, लेकिन जब हम एफर्ट की बात करते हैं तो एफर्ट इज़ एक्चुअली द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डू दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी। और इसमें मैंने आपको मिसाल दी थी कि 1 डे ड्यूरेशन may need 8 hours of effort or 40 hours of effort। फिर इसी तरह से हमने डिफरेंट जो है एस्टिमेट्स के बारे में कहा कि 3 पॉइंट एस्टिमेट्स, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, जिसको हमने बाद में वर्स्ट केस और एवरेज केस, और इसी तरह से ऑप्टिमिस्टिक केस जो है उसकी बात की, और डिफरेंट एस्टिमेट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं इसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे जब हम PERT चार्ट की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमने
स्केड्यूल डेवलपमेंट की बात की और जितना हमने कहा कि अच्छा स्केड्यूल प्लान होगा उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर आप स्टार्टिंग लेक्चर्स की स्लाइड्स को जहन में लाएं और उसमें हमने ट्रिपल कांस्टेंट की बात की थी और ट्रिपल कांस्टेंट के अंदर एक कांस्टेंट जो है वो टाइम का है। तो अगर हमारा टाइम जो एस्टिमेट है वो सही नहीं होगा, स्केड्यूल एस्टिमेट सही नहीं होगा, तो क्वाइट चांसेस के आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू स्केड्यूल द प्रोजेक्ट। और उसके अंदर हमने फर्स्ट वन गैंट चार्ट डिस्कस किया और गैंट चार्ट के बारे में हमने कहा कि ये कॉमनली यूज़ होता है। इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, माइलस्टोन्स को हम हाईलाइट करते हैं, उसके डिफरेंट नोटेशंस को हमने डिस्कस किया कि डायमंड साइन जैसे यूज़ होता है फॉर माइलस्टोन, बार्स यूज़ होती हैं जो डिफरेंट टास्क को डिस्प्ले करती हैं और उनकी ड्यूरेशन को बताती हैं। और फिर हम डिफरेंट बार्स के बीच में या टास्क के बीच में जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको थ्रू एरोस हम आइडेंटिफाई करते हैं और विजुअलाइज करते हैं। तो अगर बाद में इस प्रोजेक्ट इधर से दोबारा ये बोलूँगा, गैंट चार्ट को डिस्कस करने के बाद हमने कहा कि जो माइलस्टोन्स हैं उसके लिए एक क्राइटेरिया डिस्कस किया, दैट इज़ स्मार्ट। और स्मार्ट के अंदर हमने कहा कि फ्रीक्वेंट होने चाहिए, स्मॉल माइलस्टोन्स होने चाहिए, उसको साइनेबल होने चाहिए और टाइम फ्रेम्ड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं कि ताकि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को देख सकें। और इफ़ वी आर नॉट ऑन द ट्रैक और हम बिहाइंड द स्केड्यूल हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर सकें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट कर सकें एंड देन वी ट्राई टू फिनिश इट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड स्केड्यूल, रादर देन कि हम कोई उसकी मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस को ना देखें और अल्टीमेटली हम जो है प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ चले जाएं। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर भी हमें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब हम माइलस्टोन्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं और जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ या टास्क को डिफरेंट रिसोर्सेज को साइन करते हैं, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स जो है, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो हमारा डिफरेंट और टूल्स हैं टू डेवलप द स्केड्यूल उसको डिस्कस करेंगे और एक आखिरी की प्रोसेस टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है कंट्रोल द स्केड्यूल, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।